Hello everyone, this is your teacher of English. My name is Sunit. This is my channel with the name of English Truck. I'm working on your English grammar, specifically on how to use articles. Now, I know this is the lesson you need to watch. There are three English articles: a, an, and the. Articles are very challenging and a very important part it plays in speaking English. Using one article instead of the other article changes the meaning in English. They give information about the noun that comes before. We generally make kids a lot of mistakes in using articles and we never realize our mistakes. But we don't have to worry about this. And moreover, there are so many rules to follow in articles. So do exceptions are there, kids. And I would try to explain some of the rules of articles today. And I hope it would be very easier for you to understand. So let's begin, kids. As I told you, there are two broad articles. One is definite. The example for definite article is the. We use definite article when there is pakka pakka. That is when there is something specific, kids. And the other one is indefinite article. In indefinite article we use a and an. If I say, let me give you an example, kids. If I say bring a chair, आप एक कुर्सी ले आओ, what you'll do? You will bring a chair for me, right? आप कोई भी एक चेयर ले आओगे, right? But if I say a specific one, bring the chair lying near the window, जो उस खिड़की के पास है, आप वो वाली चेयर ले आओ, means the particular chair that is lying near a particular window. अगर आप वो ले आते हो बच्चों, तो it means that is definite. So that's why we are using the. Moreover, kids, we use the indefinite articles a and an before countables in the singular number. हम बच्चों a और an को countables के साथ यूज़ करते हैं in singular number. Examples are a boy, a tree, a shop, an egg, an ox, an umbrella. बच्चों इसमें boy, tree, shop, egg, ox and umbrella ये countable हैं in singular number. And kids, the sound of a actually depends upon initial sound of countable noun. Like we use a before a countable noun in a singular number beginning with a constant sound. बच्चों हमने बचपन में पढ़ा है ना, वॉवल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. बच्चों इसमें आपने हमेशा याद रखना है, जब भी आपके किसी भी वर्ड में वॉवल हो प्लस एडेड वॉवल साउंड होगा तो वी ऑलवेज यूज़ एन. और अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? वी विल ऑलवेज यूज़ अ, लाइक अ मैन, अ फ्लावर, अ काउ. याद रखना बच्चों, कुछ वर्ड्स हैं जो आपको ना बहुत बार पजल भी करेंगे. लाइक वर्ड्स लाइक यूनिवर्सिटी, यूरोपियन. आप देखोगे तो उसमें यू विल फाइंड दैट उसमें आपको क्लियर नज़र आ रहा है, वॉवल नज़र आ रहा है, दैट यू विल सी यू एंड ई एज वॉवल्स. बट बच्चों याद रखना, इसमें हम आर्टिकल अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन यूज़ करेंगे. क्यों यूज़ करेंगे बच्चों? क्योंकि इसमें वॉवल तो दिख रहा है हमें आगे, बट बच्चों इसमें साउंड नहीं आ रही है. इसमें साउंड आ रही है य की, य, यो, इसकी साउंड आ रही है. और वो साउंड क्या है? कांस्टेंट साउंड है. और कांस्टेंट साउंड के लिए बच्चों मैंने क्या बताया आपको? क्या यूज़ करेंगे हम आर्टिकल? हम अ यूज़ करेंगे. वंडरफुल, आई होप यू आर गेटिंग. अब हम आते हैं बच्चों एन पे. वी यूज़ एन बिफोर अ काउंटेबल नाउन इन अ सिंगुलर नंबर beginning with a vowel sound.
याद रखना बच्चों, एक तो आपको पहले वॉवल हो या वॉवल साउंड हो तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वॉवल साउंड. वॉवल साउंड होनी ज़रूरी है. वी विल टेक सम वर्ड्स लाइक एंट, चीटी, एक्स, एप्पल. जो ये 3 नाउन्स हैं बच्चों, एंट, एक्स, एप्पल, these are countables, right? So we will always use an ant, an axe, an apple. Similarly, कुछ ऐसे words भी होंगे बच्चों which would have silent h. h की साउंड साइलेंट होगी बच्चों. जैसे हम एक वर्ड है honest, HONEST, हम उसे बच्चों उसमें हम क्या साउंड यूज़ करते हैं, ओ साउंड यूज़ करते हैं, ऑनेस्ट. एन ऑनेस्ट पर्सन, आवर, एन आवर, ऑनरेबल, एन ऑनरेबल मैन. तो आपने देखा ना, जब भी वॉवल साउंड आएगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम हमेशा एन यूज़ करेंगे. सो मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर. एन ऑक्स, एन एरी रूम, एन आर, an idea, an essay, an uncovered dish, an egg, an experienced teacher. बच्चों अब हम इसके आगे बढ़ेंगे and we will get to know information about our definite article which I told you before, पक्का पक्का, जिसमें specific हो कुछ, वो है the. बच्चों इसमें आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा and we will get to know about so many rules in this. बच्चों हमें याद रखना है, वी यूज़ द बिफोर एनी नाउन व्हेन वी वांट टू पर्टिकुलराइज इट. मतलब हम उसे पर्टिकुलरली उसे बताएं कि यही चीज़ है, दिस इज़ द थिंग. एग्जाम्पल, वी लॉस्ट द बॉल विथ विच वी वर प्लेइंग. हमने वो बॉल खो दी जिससे हम खेल रहे थे. बच्चों किस बॉल से खेल रहे थे, उसी बॉल से जिससे खेल रहे थे. सो वी विल यूज़ द बॉल. क्लोज द विंडो ऑन योर लेफ्ट. इफ़ आई से क्लोज द विंडो ऑन योर लेफ्ट, मैं बता रहा हूँ आपको कि अपने लेफ्ट में जो विंडो है उसे आप क्या कर दो, क्लोज कर दो. दैट इज स्पेसिफिक विंडो. सो वी विल यूज़ द. बच्चों हम विथ सुपरलेटिव्स ऑल्सो वी विल यूज़ द. हमने जैसे पढ़ा है पहले भी, सुपरलेटिव्स जैसे बेस्ट हो गया, मोस्ट इंटेलिजेंट हो गया, मोस्ट फेथफुल हो गया, वर्स्ट हो गया. इन सभी के आगे हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे बच्चों. लाइक एग्जाम्पल इज, दिस इज़ द बेस्ट बुक विच आई रेड टुडे. ये सबसे अच्छी किताब है बच्चों जो मैंने आज पढ़ी है. वॉट आई एम यूजिंग, द. हिमांशु इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास. हिमांशु क्या है, मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय है. सो मोस्ट इंटेलिजेंट के आगे हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों, वी विल यूज़ द. with words like first, last, next, only. कुछ शब्द हैं बच्चों, first, last, next, only, उसके साथ हम हमेशा द यूज़ करेंगे. मधु इज़ द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स. जो मधु है वो क्या है, वो सिर्फ अकेली बेटी है अपने माता पिता की. सो वी विल ऑलवेज यूज़ द ओनली डॉटर. हु इज़ सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच. कौन बैठा है लास्ट बेंच पे, पर्टिकुलरली द लास्ट बेंच वी यूज़. वो वाली लास्ट बेंच, स्पेसिफिक बेंच, वी विल यूज़ द. विथ अ कॉमन नाउन व्हेन दैट नाउन रिप्रेजेंट्स द होल क्लास. पूरी क्लास को वो नाउन रिप्रेजेंट करता है, तब भी हम हमेशा द यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल्स आर, द रोज़ इज़ अ ब्यूटिफुल फ्लावर. वो रोज़ है जो ब्यूटीफुल फ्लावर है, द रोज़ वी विल यूज़. द डव इज़ अ वेरी जेंटल बर्ड. जो डव है, जो चिड़िया है डव, वो कैसी है, बड़ी प्यारी, बड़ी शांत सी चिड़िया है. सो वी विल यूज़ द. विथ नाउन्स सच एज अर्थ, मून, सन, स्काई, वी विल ऑलवेज यूज़ द. क्योंकि ये यूनिक है बच्चों, ये अकेला है, एक ही है अपने आप में. लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अर्थ किसके आसपास घूमता है, सन के. वी हैव हर्ड दिस एग्जाम्पल, सो वी यूज द अर्थ, द सन. देयर वर नो क्लाउड्स इन द स्काई. आज कुछ भी बादल नहीं थे आकाश में. सो वी ऑलवेज यूज द विद द स्काई.
with the with the names of rivers, seas, oceans, we will always use the, like the Narmada falls into the Arabian Sea. The Narmada falls, the Arabian Sea is the example. With the names of mountain ranges, kids, we always use the Himalayas, the Alps are the examples. With the name of holy books, हमने सुना है होली बुक्स के बारे में, राइट, लाइक द महाभारता, द रामायणा, ये भी एग्जाम्पल है बच्चों. विद द नेम्स ऑफ ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स एट्सेट्रा, वी विल ऑलवेज यूज द इन फ्रंट ऑफ इट, लाइक द राजधानी एक्सप्रेस, द टाइटैनिक, द इंडिगो are the examples. With the names of countries, if the name includes a common noun, बच्चों कंट्रीज़ के नाम होंगे और उस नाम में अगर कॉमन नाउन भी इंक्लूड होगा, सो वी विल ऑलवेज यूज द, लाइक द UK and the USA are developed countries. UK, यूनाइटेड किंगडम, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनके आगे बच्चों हमेशा क्या लगेगा, द UK, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. विद द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, हमने सुना है ना बच्चों, कितने सारे न्यूज़पेपर्स हैं, उसके आगे हम क्या यूज़ करना है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हेरल्ड, द इंडियन एक्सप्रेस, द ग्लोबल टाइम्स आर द एग्जाम्पल्स. विद द नेम ऑफ वेल नोन बिल्डिंग्स, वी ऑलवेज यूज़ द. बच्चों हमारे इंडिया का एक वन ऑफ द 7 वंडर्स है, आप सब जानते हो, आई नो यू गॉट द नेम, दैट्स करेक्ट, द ताजमहल. हमेशा हम ताजमहल के आगे क्या लगाएंगे, द. वी विजिटेड द ताजमहल लास्ट वीक, हमने कहाँ विजिट किया था लास्ट वीक, ताजमहल. वी विल ऑलवेज यूज़ द ताजमहल. द रेड फोर्ट. बच्चों आई होप यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स. अब हम बच्चों बात करेंगे, देर आर सम ओमिशंस ऑफ द आर्टिकल्स. बच्चों हम इन चीज़ों में ना आर्टिकल को यूज़ ही नहीं करते हैं बच्चों. इज़न्ट इट फनी, इज़न्ट इट ग्रेट, इज़न्ट इट विच यू शुड नो. येस किड्स, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, हम उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं. लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. अशोका वॉज अ काइंड रूलर. वी नेवर से द अशोका वॉज द काइंड रूलर. तो इसीलिए हम, अशोका क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट वुड बी आवर करेक्ट सेंटेंस, अशोका वॉज अ काइंड रूलर. न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. हम कभी ऐसे बोलते हैं क्या बच्चों, द न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? नहीं. इसीलिए न्यू दिल्ली क्या हो गया, मेरा प्रॉपर नाउन है. और हम क्या करेंगे, प्रॉपर नाउन के आगे हम कभी भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे. क्लियर है बच्चों? आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ द सेकेंड omission rule is no article is used with abstract noun. बच्चों आप लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भी थोड़ी नॉलेज होगी. तो हम कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे क्या करते हैं, हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं. लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. ब्यूटी प्लीजेज आर आइज. कभी हम नहीं बोलते हैं अ ब्यूटी प्लीजेज, एंड ब्यूटी प्लीजेज और द ब्यूटी प्लीजेज. वी ऑलवेज से ब्यूटी प्लीजेज आर आइज. सिमिलरली विजडम इज़ एडमायर्ड एवरीवेयर. जो विजडम है वो हम सब जगह मानी जाती है बच्चों, सब उसको पूछते हैं. वी नेवर से द विजडम इज़ एडमायर्ड एवरीवेयर, वी से विजडम इज़ एडमायर्ड everywhere. So we will never use an article before wisdom, which is an abstract noun. कोई भी आर्टिकल बच्चों हम यूज़ नहीं करते हैं. कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, वाटर, जो कि मटेरियल थिंग्स होते हैं बच्चों, उनके आगे भी हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं. लेट मी गिव एन एग्जाम्पल फॉर दिस. गोल्ड इज़ एन एक्सपेंसिव मेटल. हम कभी नहीं बोलते हैं कि द गोल्ड इज़ एन एक्सपेंसिव मेटल. We always say gold is an expensive metal. Children should drink milk every day. हम कभी बोलते हैं क्या बच्चों, the children should drink milk every day? नहीं बोलते हैं. हम हमेशा क्या कहते हैं, children should drink milk every day. बच्चों को दूध डेली पीना चाहिए ना बच्चों. आई होप आप लोग भी डेली दूध पीते हो
और आप अपने मम्मा मम्मा और पापा को कभी भी तंग नहीं करते हो बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने देने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आई होगी। एंड विद दिस एक्सप्लेनेशन आई एम गोइंग टू एंड दिस चैप्टर आर्टिकल। बच्चों अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे लिंक पे ही मेरे चैनल पे आपकी कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड आई वुड ट्राई कि मैं आपके क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर दूं। थैंक यू एंड यू हैव अ वंडरफुल डे।